Moving on now, Delhi verdict is sealed and all eyes are now on the next big electoral battle of 2025, which is set to unfold in the state of Bihar. Elections are going to take place later this year in Bihar, and ahead of that, there is talk of a possible churn that could take place in the JDU camp. Over the last few months, you've heard Bihar-based politicians raising concerns over State Chief Minister Nitish Kumar's health. Many have also taken jibes. Many have raised questions over what next for his party and their political future. And now there is speculation that Nitish Kumar's 47-year-old son Nishant Kumar can perhaps step into his shoes. Posters are emerging, making a clamor for Nishant Kumar. The posters read, and I quote, "Bihar kare pukar, I Nishant Kumar." But the man who is now making the headlines is attempting to dismiss the chatter around his father and Bihar Chief Minister Nitish Kumar's health. He has appealed to the voters of Bihar to choose his father yet again, while asserting that he is 100% fit. But when questioned about the possibility of his political entry ahead of the make or break Bihar election, Nishant Kumar remains tight-lipped. बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आने की चर्चा क्या कहेगा सर? Now, RJD leader and Nitish Kumar's arch rival Tejasvi Yadav is also fueling speculations around Nitish Kumar's son's political entry. Tejasvi Yadav tried to dismiss Nishant's assurance about his father being fit and said that if Nishant enters politics, he could save JDU from its alliance partner, the BJP. Tejasvi also added that Nitish Kumar has been hijacked and a few officers are running the government in Bihar instead. He added that his father Lalu Yadav, who is 3 years older to Nitish Kumar, is fitter than the chief minister. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और काम जो उन्होंने 19 साल किया है उसी के लिए वोट मांग रहे हैं कि फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरे पिता उनसे भी ज्यादा फिट। निशांत भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? अब यंगस्टर है, लोग यंग है, हम भी यंग हैं, तेजस्वी जी भी यंग है, सब अपना अपना लोग सोचता है कि अपना पाइपलाइन में घुस के आगे निकल जाए। निशांत की राजनीति में एंट्री होने जा रही है तेज प्रताप जी, उनको आना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, सबका अपना अपना है, उनको आने का मन हो वो आए, नहीं आने का मन हो नहीं है। Now, as we inch closer to Bihar elections, are political dynamics going to change further? Will new players and new faces play a key role? This time, the focus is also on Prashant Kishore, who is gearing up to contest in the elections. In his exclusive interview with group editor Navika Kumar, Prashant Kishore spoke about Nitish Kumar and claimed that Nitish is physically tired as well as mentally retired. Prashant Kishore told Navika Kumar that if Nitish Kumar fights elections, he will contest against him. आप यहाँ के हैं, बाकी बाहर के हैं। ऑब्वियसली मोदी और साथ यहाँ के हैं नहीं, तो नीतीश कुमार है। नहीं, सोनिया गांधी तो यहाँ के नहीं। नीतीश कुमार तो फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं। उनको ऐसे खड़ा करके रखा गया है, फिजिकली वो आदमी कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कहीं ये लोग पत्रकार हैं, यात्रा कर रहे हैं। कौन सा यात्रा कर रहे हैं? वो यात्रा उतरा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो सरकारी बस उससे हेलीकॉप्टर से बैठा के उनको झाड़ पोंछ के खड़ा कर दिया जाता है। जाते हैं 2-4 शब्द बोलते हैं, उनको झाड़ पोंछ कर खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल आपको बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं। मैंने आपको कैमरे पे कहा, नीतीश कुमार, मेरा आपसे आग्रह है, आप नीतीश कुमार का इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू करके खाली एक बात पूछ दीजिए कि अपने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का, साथी मंत्रियों का नाम बता दीजिए। अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का नाम और विभाग बता दें, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, ये पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार का समर्थन कर दूंगा। जिस एक समय में किया था, नहीं किया आपने, आप फिर बात घुमाइए, आप एडवाइस आप इस पर टिके थे। रहिए, आप टिके रहिए। तब 2014 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क है। मैं बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक शारीरिक हालात अब ऐसी नहीं है
और ये कोई, मैंने तो कहा जांच करा लीजिए, जांच क्या भी विषय नहीं है, कोई भी पत्रकार चला जाए। नीतीश कुमार ने पिछले कई महीनों से कोई पत्रकारों से बातचीत नहीं की है। आप कहेंगे तो मोदी जी ने नहीं किया है, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, भाषण तो दे रहे कहीं। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, कोई विषय पे उनको जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। उनके इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं, वही चला रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आपके झाड़ पहुंचकर मुख्यमंत्री, और वो अगले और नहीं, बड़ी बात ये नहीं है। बीजेपी ने तो एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वही फेस रहेंगे अगले चुनाव का। इससे बढ़िया काम बीजेपी हम लोग जैसे लोगों के लिए कर ही नहीं सकती है। बीजेपी का धन्यवाद। मैं तो आपके कैमरे पर ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी आए और ये घोषणा करें कि एनडीए की ओर से अगली बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कर दें और न भाजपा वाले सब हार गए चुनाव, तो आप लिख लीजिए मेरी बात को। खाली वो कह दें, डर के मारे कहते नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अभी उनके नेतृत्व में लड़ेगा। अभी तक भाजपा ने ये नहीं कहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। Responding sharply to Tejasvi Yadav, JDU's Rajiv Ranjan and Neeraj Kumar tried turning the tables by raising questions over Lalu's health. Listen in to how they have reacted. कि राजद की डूबती नैया को पार लगाने में तेजस्वी यादव का जो निस्तेज नेतृत्व है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। राजनीतिक असहमतियां हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत प्रहार, कभी स्वास्थ्य को लेकर के, कभी कुछ कह करके तेजस्वी यादव ने इतना साबित कर दिया है कि उनके पास खुद को इस राज्य को देने के लिए कुछ नहीं है और वो लगातार केवल वो प्रहार करना जानते हैं। घटिया और व्यक्तिगत आरोपों के बल पर राजनीति में कोई किसी का विकल्प बन सकता है, ये सोचना भी हास्यास्पद है। Now, critics and rivals in both RJD and Congress have been citing how Nitish Kumar has always spoken against Parivarvad and dynastic politics, and how now, when there is a talk over Nitish Kumar, a 47-year-old with no political experience whatsoever, making his entry in Rajniti ahead of Bihar elections, doesn't it reek of hypocrisy? Listen into what Nitish Kumar had said about Parivarvad back in 2024. आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए हैं। लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। You heard the political pitches there, but for those glued into Champions Trophy's capital clash between India and Pakistan have just lost their 4th wicket. Time for us to take a quick break.